This is big breaking news that is coming in at the top of 6 from the state of Haryana. This is where a junior athlete coach has accused Haryana's sports minister Sandeep Singh of sexual misconduct. Now, the woman says that Sandeep Singh invited her home and indulged in sexual misconduct. Now, remember, Sandeep Singh was the vice captain of India's hockey team. He's an Olympian. He made his debut in 2004 and retired in 2012. In 2019, he was elected to the Haryana State Assembly on a BJP ticket. Let me try and go straight across to Gurpreet, who is joining us on the phone line. Gurpreet, what more details do you have? What exactly is this junior athlete coach saying? Well, very serious allegations have been leveled against the sports minister, and we have seen the sports minister is also trying to put his side of the story. But we have seen this coach, she has already come to Abhay Singh Chautala, where she has addressed to the media, saying very serious allegations that she was being molested by the minister of Haryana State. And now what we have learned from even the sports department also, they are saying they are trying to look into this matter. So far, the investigation is already underway from both the sides. At the same time, Sandeep Singh is in the defensive mode. He is saying that she is being transferred, and that was one of the reasons why such type of allegation have already been come up. Even the sources within the sports department, they say yesterday there was some shuffling of some of the coaches, and she was one of them, and that could be one of the reasons. But now the things will be more clear once Sandeep Singh is going to put his side of the story. But as of now, very, very serious allegations have been leveled by this woman coach who alleged that she is being molested by this minister, and she was demanding that there should be fact-finding inquiry and investigation should be conducted into this. Essentially, the allegation she is making is not just for herself. She has also said in a press conference that there were other women players who have been harassed by Sandeep Singh as well. She's saying that he first contacted me on Instagram, Gurpreet. Then he went on to say, why don't you come home? He called her to meet her as well sometime in Chandigarh, which she refused to do, post which he said, I need to see some of your documents. That is when this woman goes to Mr. Sandeep Singh, and she's alleging that this is where she was harassed. There was sexual misconduct. What exactly was the nature of sexual misconduct is something that she has not clarified in her press conference. Gurpreet, what about Sandeep Singh? I believe he's set to hold a press conference to give his side of the story. So far, he's saying this is a big sazish against him, a big conspiracy against him. Well, yes, of course, we have seen first Sandeep Singh was giving his side of story, and finally he has come to Chandigarh, and he is going to address the media to telling his side of the story. No, as of for now, what we have learned from the sports department officials and the ministers who are very close to the minister, they are saying that there was a transfer, and she was one of them who is being transferred by Sandeep Singh, and that could be one of the reasons why this sports department reshuffling could be one of the reasons why she had come forward and she held a press conference. We have seen that this issue has become one of the major political issue in Haryana state when Abhay Singh, who is the leader of INLD, Indian National Lok Dal, he has also jumped into this thing, and there he has briefed to media, and she is also present there. She has also briefed to media. So now very serious nature of allegations have been leveled against this sports minister. So let's see that how he is going to defend himself, what evidence he is going to bring against her, whether she was being reshuffled from that place on some merits, or whether there is an allegation which have been leveled by this woman coach who was saying that she was being harassed by the minister. So all these things are needs to be probed in detail so that they will be able to find out that who is at the fault and what was the real reason behind this thing. Because as of now, she was trying to say that she was being harassed by the sports minister, and a lot of serious nature of allegation have been leveled by that. But once Sandeep Singh is going to appear and he is going to tell his side of story, after that things will be more clear.
Yeah, let's see what Sandeep Singh says. So far, all we have are allegations from this junior women athletes coach. Let me go across to Manoj as well, who is also joining us on the broadcast. Manoj, थोड़ी details और आ रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए. संदीप सिंह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जो महिला कोच है इन्होंने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डिटेल्स डाल दिए हैं पब्लिक में. और वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कह रही हैं. वो कह रही हैं कि वो पुलिस के पास गई, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारियों के पास गई, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पास गई, वो गृह मंत्री के पास गई, वो सीएम हाउस गई, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हुई है. बिल्कुल. देखिए, जो ये जूनियर कोच हैं, इनका कहना है कि इन्होंने ऐसा नहीं कि शिकायत नहीं करी, प्रयास किया, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई. ये भी बताया जो पीड़िता है कि डीजीपी कार्यालय भी वो पहुंची थी, लेकिन डीजीपी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई. और हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उनके आवास पर भी वो गई थी शिकायत लेकर, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, ऐसा उनका आरोप है. और इन तमाम आरोपों को लेकर जो मीडिया के सामने आई है, हालांकि जो पूरी घटना है ये इसी साल सितंबर महीने की उन्होंने बताई है. और ये कहा कि वो क्योंकि मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें, इसलिए अब तक वो पुलिस के पास नहीं पहुंची या पब्लिक में नहीं आई थी. लेकिन अब क्योंकि जब उनको लगा कि बहुत ज्यादा वो परेशान हो चुकी हैं, और इसलिए अब वो मीडिया के सामने आई है. तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अब हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, वो कुछ ही देर में मीडिया के सामने आने वाले, अपना पक्ष रखेंगे. हालांकि उनकी तरफ से जो अभी तक हमें जानकारी मिली है, उन्होंने तमाम आरोपों को खारिज किया है. और ये भी सामने आया है कि जो पीड़िता है कल भी उनके चंडीगढ़ रेजिडेंस पर गई थी मुलाकात करने के लिए. जी नहीं, आप कह रहे हैं पीड़िता जो है किससे मुलाकात करने गई थी, चीफ मिनिस्टर से या संदीप सिंह से? संदीप सिंह से खुद मुलाकात करने गई थी. जो जानकारी आ रही है, कल भी उनका, क्योंकि अभी हाल ही में ये जो ट्रांसफर है ये 2-4 दिन पहले ही किया गया था, उससे संबंधित जो मुलाकात है या उस संबंध में कोई बात करने के लिए उनके रेजिडेंस पे गई थी, ऐसा हमें सोर्सेज के हवाले से पता लगा. बाकी संदीप सिंह अभी कुछ देर में आएंगे, तब उनसे भी हम ये सवाल जरूर पूछेंगे. जी जी, जरूर. आप ये सवाल तो उनसे जरूर पूछिएगा, शायद इस बारे में वो खुद ही बोल दें. वी आर वेटिंग फॉर संदीप सिंह टू होल्ड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस टू पुट हिज साइड ऑफ द स्टोरी. सम वेरी सीरियस चार्जेस कमिंग अगेंस्ट Haryana's sports minister, former Olympian, the hockey vice captain, a former hockey vice captain, Sandeep Singh. A woman junior coach has accused him of sexual misconduct. Let's listen in to what exactly she's saying. मैंने उनकी हेल्प लेने की कोशिश की कि सर प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरा होम सेंटर है और मैं कहीं और, अभी मैं पीक पे हूँ और मैं कहीं और दूसरी जगह जाऊँगी तो सर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाऊँगी. तो मैंने उन्हें भी ये मैसेज कन्वे किया. बट सर अभी 2 दिन पहले मैं स्टेडियम गई सिग्नेचर करने, तो मुझे बोला गया है कि आपकी ट्रांसफ़र यहाँ से झज्जर डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, जो कि वहाँ पे एक 100 मीटर का ग्राउंड तक नहीं है, ना 200 मीटर का ग्राउंड है. तो सर मैं 400 मीटर नेशनल रनर, मैं अभी मेरे कंपटीशन आ रहे हैं, मैंने इंजरी से कम बैक किया है, तो मैं वहाँ कैसे ट्रेनिंग कर सकती हूँ. तो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कल भी मैं इनसे मिलने गई संदीप सर से, क्योंकि ये इधर उधर से काफ़ी मैसेजेस करा. कल भी उन्होंने मुझे इतनी सब चीज़ें बोली हैं कि देखो तुम बात नहीं सुनोगी, अब तो हमने बहुत हेड कोचेस हायर किए हैं जो कि तुम डिजर्विंग नहीं करती, और तुम झज्जर में घास खोद दो आराम से. इन्होंने मेरे साथ वही बातें की इनडायरेक्टली, क्योंकि इनके स्टाफ के 2 मेंबर भी वहाँ खड़े थे. तो कल भी मैं काफ़ी प्रेशराइज रही. कुल मिला के इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से, ये 4-5 महीने में बहुत मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ, और मैंने हर एफर्ट्स किए हैं. मैंने सीएम सर से कल भी मैंने कोशिश की, आज भी मैंने उन्हें फ़ोन किया है. कल होम मिनिस्टर सर के घर में 3 घंटे अम्बाला खड़ी रही. पिछले 15 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे, अनिल वी सर से बात करने की, बट सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता. उल्टा मुझे कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी. सर मेरे पास खोने के लिए अब इतना कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ लगा दिया मैंने बचपन से एथलेटिक्स में, और अब जाके एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि या तो तुमने बात नहीं सुनी, तो तुम तो बदतमीज़ लड़की हो, तुम जवाब दे रही हो. मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली मैंने कर लिया जितना कोशिश मैं कर सकती थी, बट सिवाय मेंटली डिस्टर्ब के अब इन्होंने कल मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर दे दिए हैं, जबकि बोल रहे हैं जो करना है कर लो, ट्रांसफ़र तुम्हारी नहीं होएगी,
और तुम वहीं जाओ जहाँ पे तुम डिजर्व करते हो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। जबकि हम सर OSP से लिए गए आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसी को चेंज करके अभी रिसेंटली नई पॉलिसी से हम लोग इन्होंने लिए हैं। और उसमें साफ साफ मेंशन है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग करना चाहता है वो अभी कोचिंग देने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो खुद परफॉर्म कर रहा है, गेम कर रहा है। बट सर ये अपनी खुद की बनाई हुई पॉलिसी पे भी काम नहीं कर रहे हैं और हर वो कोशिश की है इन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर करने की। लेकिन सर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो और लड़कियों के एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि वो ऐसे कर, सर हर लड़की तो एक जैसी नहीं है ना। जब मैंने ना कर दिया, ना मतलब ना, और उस चीज़ का वो मुझे उस चीज़ पे उनका गुस्सा निकल नहीं रहा है। बट वो दूसरी हर वो चीज़ की है कि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे इतना परेशान कर रखा है, कभी स्टाफ से इशू करवा रहे हैं। Okay, that's the complainant in the case. This is the lady, the junior coach in Haryana, who is accusing Haryana's sports minister, the man on your screen, someone we've seen play hockey on our screens as well, a former vice captain, a former Olympian as well, Sandeep Singh. He fought on a BJP ticket. He won. He's currently Haryana's sports minister, as I said. He's being accused of sexual misconduct by a junior coach. Now, this harassment, according to the lady, has gone on for a while. She says that he sought sexual favors. When she wasn't forthcoming, when she didn't give in to his demands, he simply transferred her to the back of beyond. That is her allegation. Again, as I said, so far this is in the realm of allegation because Sandeep Singh is saying all of this is a conspiracy. What the lady is also saying, and I'm going to make you hear her soundbite once again, what the lady is also saying very clearly is this, that coming to the press and openly talking about what I've gone through since September is something I did only after all doors were shut on me. She says, I went to the police, they didn't want to listen to me. I went to the Deputy Chief Minister, he didn't want to listen to me. I went to the BJP headquarters, they didn't want to listen to me. I went to the Chief Minister of Haryana, he didn't want to listen to me. So I had no option, I had no other way. I had to disclose what had happened with me to the public, and this is the only way I can do it. Now, we have already seen one press conference, and I'm going to play out the bite of the complainant once again. We'll try and get her name for you in just a bit. But what we are also expecting is Haryana Sports Minister, the man who she is accusing, to hold a counter press conference and put his side of the story out. For the moment, let's listen in to the complainant. मैंने उनकी हेल्प लेने की कोशिश की कि सर प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरा होम सेंटर है और मैं कहीं और अभी मैं पीक पे हूँ और मैं कहीं और दूसरी जगह जाऊँगी तो सर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तो मैंने उन्हें भी ये मैसेज कन्वे किया। बट सर अभी 2 दिन पहले मैं स्टेडियम गई सिग्नेचर करने, तो मुझे बोला गया है कि आपकी ट्रांसफ़र यहाँ से झज्जर डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, जो कि वहाँ पे 100 मीटर का ग्राउंड तक नहीं है, ना 200 मीटर का ग्राउंड है। तो सर मैं 400 मीटर नेशनल रनर, मैं अभी मेरे कंपटीशन आ रहे हैं, मैंने इंजरी से कम बैक किया है, तो मैं वहाँ कैसे ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कल भी मैं इनसे मिलने गई संदीप सर से, क्योंकि ये इधर उधर से काफ़ी मैसेजेस करा रहे। कल भी उन्होंने मुझे इतनी सब चीज़ें बोली हैं कि देखो तुम बात नहीं सुनोगी, अब तो हमने बहुत हाई हेड कोचेस हायर किए हैं जो कि तुम डिजर्विंग नहीं करती और तुम झज्जर में घास खोद दो आराम से। हमारे विभाग की जूनियर कोच शिक्षा डागर नाम की एक जूनियर कोच ने बड़ा बेसलेस और किसका आधार नहीं होता उस आधार को बनाकर दिखाकर एक राजनीतिक दल के ऑफिस से एक प्रेस जो है वो की है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार मैं एक खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ियों की हेल्प करने के नाते उसका ये मतलब देखने को मिला कि लोग जो हेल्प करते हैं लोगों की, उनके बारे में ऐसे सुनने को मिले जिसका कोई आधार ना हो। जो भी चीज़ें मैंने सुनी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना चाहिए कि खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, खिलाड़ियों के बारे में आगे बढ़ाना उनको, मुझे लगता है कि ये मेरी भूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ फर्स्टली। सेकेंडली
ये राजनीतिक चीज़ें हैं। हो सकता है विपक्ष जो है तो इस चीज़ को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, खेलो इंडिया हो, कोई भी गेम्स हों, उसमें हरियाणा जो है और हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं बहुत आगे कर रहे हैं। और जब से मैंने खेल मंत्री के रूप में ये संभाला है तो दिन प्रतिदिन हरियाणा बेहतर कर रहा है। और इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को ख़राब किया गया है। मैं बहुत छोटी एज में ओलंपिक्स खेला, बहुत छोटी एज में हिंदुस्तान का कप्तान भी बना, बहुत छोटी एज में मैंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, और छोटी एज में विधायक बना, एज राजनीति के अंदर मंत्री बना। यहाँ पर भी आप लोगों के माध्यम से आपने तो दिन रात देखा है कि किस तरीके से खेल को भी और अपने हलके को भी और अपने एरिया को, इस चीज को किसी को हजम नहीं हुई। जो भी वो जूनियर कोच हैं, खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी के रूप में उनकी मैंने बहुत बार मदद भी की है। और मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि खिलाड़ी जो है, अगर आप शांत रहेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि अगर कोई मुझे स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी मिले और ये कहे कि मंत्री जी मुझे हेल्प चाहिए, ग्राउंड के अंदर बाहर से जो विजिटर्स आते हैं वो हमें ट्रेनिंग नहीं करने देते, भागने नहीं देते हैं, तो उस चीज़ को अगर आप रुकवाते हैं और एक्शन लेते हैं तुरंत, कि ये आपको शायद पता भी होगा कि एक मीडिया में बाइट भी चली थी और मैंने कहा भी था कि जो भी आउटसाइडर्स हैं वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने दी जाए। तो उस समय ये जो जूनियर कोच अभी हैं, उस समय खिलाड़ी थे, तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि ये स्टेडियम के अंदर कैसे है। बाद में उनको अपॉइंटमेंट चाहिए थी, अपॉइंटमेंट दी, मिले। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उनका नेशनल गेम्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं आया था, और डायरेक्टर स्पोर्ट्स को मैंने डायरेक्शन दी कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सुनी जाए, और हमारे यहाँ से विभाग की तरफ से एक एप्लीकेशन जरूर लिखी जाए या कुछ कन्वे किया जाए एथलेटिक्स फेडरेशन को, इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन को या IOA को, कि इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो पता कर लीजिए कि ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं। वो होने के बाद इनकी जॉब भी लगी। हमारे यहाँ क्या है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत बहुत से खिलाड़ी ज्वाइन किया है, और हम जब उनको फर्स्ट पोस्टिंग का स्टेशन देते हैं, और वो स्टेशन हम उस प्रकार दे रहे थे पहले कि जहाँ जहाँ पर जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जो कोच जिस गेम की कमी है उस प्रकार हम दे रहे थे। लेकिन बहुत से खिलाड़ियों का ये कहना था कि हम कॉन्टिन्यूसली खेल रहे हैं, देश की तरफ से खेल रहे हैं, हरियाणा की तरफ से खेल रहे हैं, तो हमें जो है होम डिस्ट्रिक्ट दी जाए जिससे कि हम अपनी और अच्छी ट्रेनिंग कर सकें। उस दौरान इलेक्शन शुरू हुए और हम ट्रांसफ़र किसी की नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये नई भर्ती आई, ये नया ग्रुप आया 12 कोचिज़ का, उस कोचिज़ के अंदर हमने ये कहा कि हम सबको होम डिस्ट्रिक्ट देते हैं जिससे कि किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना आए। बाकी के जो हैं उनको हम रेगुलर में ट्रेनिंग भी दे देंगे, और उनकी जो जहाँ पर वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो जिला भी दे देंगे। तो ये दिया गया। तो मैडम ने कई जगह पर फ़ोन करके मेरे से मिलने की बात की। उस समय हमारा ये सेशन भी चल रहा था, उससे पहले भी। तो कल सेशन के दौरान मैंने इनको समय दिया, यहाँ पर आए मेरे कैंप ऑफिस में, और उस समय बात हुई तो मैंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, और वो एप्लीकेशन जो है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ना करके आप ट्रेनिंग पंचकुला के अंदर करना चाहते हैं तो हम आपको
Okay, that is Sandeep Singh, Haryana Sports Minister, essentially giving out his side of the story, essentially saying that he is being framed by this junior coach who is making allegations of sexual misconduct against him. Essentially, what the junior coach is saying, that he called her home and he told her, he put her hand on her leg and told her, "Tum mujhe khush rakho, main tumhe khush rakhunga. Keep me happy and I will keep you happy." She says she somehow escaped his clutches. But then the next thing she finds is that she has been transferred to a place called Jhajjar, where even basic facilities for sports are not available. So that is, the story is at a level of charges and counter charges so far. It is a story we are keeping track of right here. But what the Sports Minister of Haryana, against whom these charges are being leveled, he's saying, even I need to institute an inquiry to understand why this lady is leveling these charges against me. So far the story is a charge versus a counter charge. Let's move on now. And we are